ہر طرف عبادت کا ماحول ہے اور لوگ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جس میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری ہے، ویسے ہی اسلام میں کہا گیا ہے کہ سال میں ایک بار اپنی دولت سے زکوٰۃ کا دینا بھی فرض ہے، یعنی ضروری ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ سال میں کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے کو زیادہ بہتر مانا گیا ہے، لہٰذا ان دنوں بھی لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں تاکہ غریب بھی بہتر زندگی گزار سکے۔ رمضان کے پوتر مہینے میں زکوٰۃ اور فطرہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سب سے اہم اور آسان راستہ ہے۔ زکوٰۃ یعنی دان کرنا۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی سالانہ آئے کا 2.5% دان کرنا چاہیے، اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ہر اس مسلمان کے لیے سالانہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا ہی دھن جمع یا اس پر 1 سال نکل گیا ہو۔ اسلامی معاملوں کے جانکار بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ اسلام میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے اور جو رقم جمع کی گئی ہے وہ اسلامی لحاظ سے پاک ہو جائے۔ دیکھیں، زکوٰۃ یہ عربی کا لفظ ہے۔ زکوٰۃ کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے زکوٰۃ کے بڑھنا اور زکوٰۃ کے دوسرے معنی ہے پاک صاف ہونا۔ تو چونکہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ بظاہر تو ہم نے 1,00,000 روپے 2,500 روپیہ نکالا تو ہمیں بظاہر 25 روپے کم ہوتے ہوئے نظر آئے، لیکن غیبی طور پر جو اس مال میں خیر و برکت ہوگی اس کا بظاہر ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اس مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے دوسرے معنی پاک ہونے کے آتے ہیں، چونکہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال بالکل پاک صاف اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس مال کے اندر سے غریبوں کا حق ہم نے نکال دیا، فقیروں کا حق ہم نے ان کو ادا کر دیا، تو ان کا حق نکالنے کی بنا پر جب تک ان کا حق ہمارے مال سے جڑا ہوا تھا تو گویا ابھی تک ہمارے مال کو پاکی صفائی حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ہم نے غیروں کا حق، اپنے غریب بھائیوں کا اور مسکینوں کا حق ان تک پہنچا دیا، اب ہمارا مال پاک صاف ہو گیا۔ تو زکوٰۃ اللہ کی طرف سے اصل مال کے اندر ہے۔ یہ مال جو ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اصل یہ تو ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میں حکم دیتا کہ تمہیں اپنا تمام کا تمام مال میرے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنا سارا کا سارا مال غریبوں کو دینا ہے، تب بھی ہمیں کسی قسم کا شکوہ گلہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اپنا پورا مال نہیں دینا ہے، بلکہ اپنے مال کا 2.5% نکالنا ہے۔ وہ بھی روزانہ نہیں دینا، ہر مہینے نہیں دینا، بلکہ سال میں 1 مرتبہ دینا ہے۔ وہ بھی اس صورت میں دینا ہے جب کہ تمہارے مال کے اوپر 1 سال گزر گیا ہو، اس صورت میں دینا ہے جب کہ تمہارے اوپر کسی کا قرضہ نہ ہو۔ تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا احسان ہے۔ اس نے پہلے اپنے بندوں کی رعایت کی ہے، اور بندوں کی رعایت کرنے کے بعد اس نے بندوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ یا دان کا ذکر ہر مذہب میں ہے۔ جین دھرم میں جس اپرگرہ یعنی ضرورت سے زیادہ دھن یا وستو اپنے پاس نہیں رکھنے کی بات کہی گئی ہے، یعنی جمع مت کرو اور ضرورت مندوں کو بانٹ دو، دان کر دو، یہ جین دھرم میں کہا گیا ہے۔ اسی طرح سناتن دھرم میں بھی تیاگ کرتے ہوئے اپبھوگ کی بات کہی گئی ہے۔ یہ تیاگ دراصل زکوٰۃ کی پیروی کرتا ہے۔ بائبل میں کہا گیا ہے فریلی یو ہیو ریسیو فریلی یو گیو، یعنی تمہیں خوب ملا ہے تم خوب دو۔ اسلام مذہب میں بھی زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دوستی کا دستاویز تو ہے ہی، روزے کا زیور بھی ہے۔ زکوٰۃ کا زیور روزے کی گورا اور گریما کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ زکوٰۃ میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کا دکھاوے کی زکوٰۃ بن جائے گا۔ دکھاوا شیطانیت کا نشان ہے، انسانیت کی پہچان نہیں۔ اسلام میں زکوٰۃ کی ماترا نردھارن اور ان چیزوں کو انگت بھی کر دیا گیا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ کو
4 भागों में बांटा जा सकता है। खेती व बाग, दूसरा चौपाए पशु, ऊंट, गाय, बकरी इत्यादि, तीसरा सोना चांदी इत्यादि, चौथा व्यापार में हुआ लाभ। ज़कात साल में एक बार फर्ज है। खेती व बाग का साल उस समय पूरा समझा जाएगा जब फसल पक जाए। अगर ज़कात हर हफ्ते और हर महीने देनी होती तो दौलतमंद लोगों के लिए बड़े घाटे की बात होती। अगर जिंदगी में एक बार ज़कात फर्ज होती तो इसका नुकसान गरीबों को उठाना पड़ता। ज़कात की मात्रा व गणना, ज़कात की मात्रा व निसाब का निर्धारण मालिकों की मेहनत, प्रयास, उनकी सहूलियत और मेहनत को सामने रखकर किया गया है। जिस धन की प्राप्ति में खुद उसकी मेहनत शामिल हो तो उस पर 10वां हिस्सा वाजिब होगा, जैसे खेती व बाग आदि जिसके जोतने व बोने का काम वो खुद करता है। सोना चांदी व ज़कात, सोने की सीमा 7.5 तोला होना चाहिए, वहीं चांदी की सीमा 52.5 तोला चांदी रखी गई है। यानी जिस आदमी के पास सोना चांदी की इससे ज्यादा मात्रा है उस पर धन के कुल मूल्य का 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात निकालना वाजिब हो जाता है। इस्लाम जो मजहब है ना बड़ा मतलब एतदाल के साथ अल्लाह पाक ने हर मतलब जो भी मतलब अरकान हैं सारे अरकान में बड़ी एतदाल और एतदाल के साथ साथ वो मजहब का हिस्सा तो है ही और उसमें सवाब मिलेगा, लेकिन दूसरे इंसानों को इक्वल करके जो समाजवाद का या ये इस्लाम से ही मतलब सोशलिज्म है जो इस्लाम से ही मतलब ये आया है, क्योंकि 1500 साल पहले ये चीज़ें थी नहीं। तो ज़कात से कि जिससे कि अमीर आदमी है वो अपने पैसे को मतलब 2.5% के हिसाब से निकाले तो जो हमारे जो गरीब भाई हैं उन तक पहुंच जाए, तो ये जो भी मतलब वो है धन दौलत है वो एक आदमी पे इकट्ठा ना हो, वो समाज में मतलब सर्कल लगाती रहे। इसी तरीके से वो जो ब्याज को मना किया है अल्लाह पाक ने, उसी तरीके से जिससे कि एक ब्याज जो लेने वाला आदमी है उसके पास जमा हो जाएगी पूंजी और बाकी दूसरे हैं जो वो महरूम होते जाएंगे। तो ब्याज को बंद कर करके तो अल्लाह ने जिस तरह के पूरी सोसाइटी में गर्दिश कर दिया है मतलब उसको धन को, इसी तरीके से ज़कात है। तो हमें उनका रोज़ा से तो महसूस हुआ कि भाई हमें उनका दुख दर्द इसी तरह हम उनको देते हैं। ये हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जैसे टैक्स का वो है वो तो गवर्नमेंट अपने उसके लिए करती है, लेकिन ज़कात है कि गरीबों के लिए। जी हाँ, गरीबों के लिए है और अमीर को भी यह एहसास हो जाएगा कि भाई हिम्मत दूसरे भाई हैं जो वो भी हमारे बराबर हैं और उनको किसी वजह से अल्लाह ने कोई गरीबी या मोहताजी या किसी तरह से दिए तो वो हमारे बराबर के भाई हैं, हम अपने उस हिस्से में से उनको निकाल करके दें। ज़कात के हकदार कौन है? इस्लाम में ज़कात के 8 हकदार बयान किए गए हैं। नंबर 1, फ़कीर। ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ न कुछ माल तो हो मगर उनकी ज़रूरत के लिए काफ़ी ना हो, जो बेहद गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हो और किसी से मांगते ना हो, ऐसे लोगों को ज़कात दी जा सकती है। दूसरा, मिस्कीन। ये लोग बहुत ही तंग हाल में होते हैं जिनके पास अपने तन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी ना हो। आमिलीन अलैहा से मुराद उन लोगों से है जिनसे इस्लामी हुकूमत ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर करे, उनको ज़कात में मद से तनख्वाह दी जाएगी। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। ये वो लोग हैं जिनको इस्लाम की हिमायत के लिए या इस्लाम की मुखालफत से रोकने के लिए रुपया देने की ज़रूरत पेश की जाए। फिर रिकाब। इनसे मतलब ये है कि जो शख्स गुलामी के बंधनों से छूटना चाहता हो उसको ज़कात दी जाए, अर्थात मालिक को रुपया देकर उसको गुलामी से छुड़ा लिया जाए।
अलगारिमीन, वो लोग जो कर्जदार हो, अर्थात इतना कर्ज कि उसे अदा करने के बाद उसके पास कुछ ना बचता हो, उसे ज़कात दी जा सकती है। फी सबीलिल्लाह, ये आम लफ्ज़ से जो सभी नेक कामों पर इस्तेमाल होता है, अर्थात सच्चे दिन का झंडा बुलंद करने वाले लोगों की मदद करना जो ज़रूरतमंद हो। मुसाफिर, सफ़र की हालत में वो लोग जो मोहताज है उसे ज़कात दे देनी चाहिए। ज़कात किसे नहीं दी जानी चाहिए? कोई आदमी अपने बाप या बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, शोहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। अल्लाह ताला ने जहाँ पे नमाज का जिक्र फरमाया वहाँ पे ज़कात का भी जिक्र फरमाया है कि जिस तरह नमाज कायम करो, अक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। और ज़कात जो साहिब हैसियत है, जो साहिब निसाब है, उस पर ज़कात अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं। क्योंकि ये ज़कात जो है ऐसा असल इस वक्त बहुत सारे लोग इस वजह से ज़कात नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं कि हम ज़कात अगर देंगे तो हमारे माल के अंदर कमी आएगी। हालांकि इसके ज़कात के माता है नुमू के, ज़कात अन्नुमू यानी बढ़ोतरी होती है। ज़कात देने से उसके माल में इजाफा होता है और उसका माल जो है एक तरह से वाइट हो जाता है, यानी काल ब्लैक जो मनी थी वो वाइट हो जाती है। जिस तरह हम टैक्स देकर दुनिया के अंदर अपने माल को वाइट करते हैं, तो ज़कात देकर हम अपने माल को वाइट कर रहे हैं। और जब हम ज़कात देते हैं तो जो माल बचा हुआ है वो चीज़ लूटने से, गलत जगह खर्च करने से, इधर उधर से वो चीज़ें अल्लाह ताला उन मालों को बचा देता है। नज़दीकी रिश्तेदार ज़कात के हक़दार नहीं। ज़कात सिर्फ मुसलमानों का हक़ है, लेकिन गैर मुस्लिम को आम खैरात व सदक़े में से हिस्सा दिया जा सकता है, बल्कि आम खैरात में फ़र्क करना गैर वाजिब है। ज़कात अपनी ही आबादी के गरीबों में खर्च होनी चाहिए। अगर अपनी आबादी में ज़कात के हक़दार नहीं तो फिर अन्य आबादी में भेजी जा सकती है। देखिए, ज़कात का जो पैसा ओनली मुस्लिम्स के लिए है, लेकिन उस पैसे के साथ और भी लोग जब ताउन करेंगे तो उससे हम फलाही काम बहुत सारे कर पाएंगे। और ये तंजीमें अगर इकट्ठा होकर के काम करें तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इससे आप गरीब बच्चों के एजुकेशन का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उनको आप स्कॉलरशिप की शक्ल में बहुत बड़ी रकम दे सकते हैं, उससे वो अपना तालीम का सारा ख़र्चा करेंगे। दरअसल ज़कात का पैसा उसके भी लिमिट्स हैं कि इधर सीधा खर्च कर सकते हैं, इधर डायरेक्ट नहीं, इधर इनडायरेक्ट, वो अलग अलग है। ज़कात के माल में शर्त है गरीब को मालिक बनाना, मुस्तहिक को मालिक बना देना। बिलफरज आपने खाना बनाया है ज़कात के पैसे का, तो खाने का मालिक बनाना पड़ेगा आपको। उसको दे दिया आपने, मालिक बना दिया तो ज़कात अदा हो जाएगी। अदरवाइज़ आपने मालिक नहीं बनाया, ज़कात अदा नहीं होगी। इसलिए इसका एक मसला भी है। आम आदमी इसको अगर ज़कात को खर्च करेगा तो वो शरीयत से हट कर के भी खर्च कर देगा, जो कल क़यामत के दिन उसकी गिरफ्तारी का ज़रिया बन जाएगा। तो हम जो खर्च करते हैं, हम बच्चियों को मालिक बनाते हैं उस पैसे का। उससे फिर पैसे ले कर के उनसे फिर उसका सामान ख़रीदते हैं या सामान ख़रीद का मालिक बना देते हैं। वो हम कोशिश करते हैं कि शरीयत का दायरे में रह कर के ज़कात खर्च की जाए। हालांकि हिंदुस्तान में कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनको ज़कात का पैसा दिया जाता है और फिर वो अपने हिसाब से गरीबों के लिए या फिर ऐसे काम के लिए खर्च करती है जो मुस्लिमों के लिए ज़रूरी है। इनमें तालीम, गरीब बेटियों की शादी करवाना और दूसरे कामों में खर्च करना शामिल है। पूरे भारत में ऐसे संगठनों की बड़ी तादाद है। हालांकि कई बार लोग धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि ज़कात के मामले में ज़रा भी जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमेशा ऐसा सोच समझकर करें और हकदार को ही ज़कात दें। ज़कात को लेकर किस तरह से आप लोग काम करते हैं? दरअसल ज़कात हम कोई सफ़ीरों के मार्फत इकट्ठा नहीं करते। मेरी मस्जिद में जो नमाजी आते हैं, रमज़ान का अलविदा का जुमा हमारा ख़ास है हमेशा पिछले 25-30 साल से, कि गरीबों के लिए वो हमने मखसूस कर रखा है। उसमें हम ज़कात, सदका, खैरात, फ़ितरा सब कुछ जमा करते हैं। जो जितने नमाजी दे देते हैं वो कभी 30,000, 25,000, 28,000 रुपये रकम हो जाती है। वो हम 10, 12, 8, 15 बेवाओं को तकसीम कर देते हैं, जिससे वो अपनी ईद की खुशियाँ
दो बाला कर लेती हैं और अपना छोटा बड़ा ज़रूरत का सामान ख़रीद लेती हैं। बाकी एक दो साथी मेरे ऐसे हैं जो बेचारे अमीर हैं, अल्लाह ने उनको माल दिया है, उनका पैसा हम गरीब बच्चियों की शादियों पर ख़र्च कराते हैं। तकरीबन 25-30 शादियाँ हर साल हम ऐसी करते हैं कि जो गरीब बच्चियों को जहेज़ का सामान, बर्तन, बेड और अलमीरा, दूसरी ज़रूरत की चीज़ें, लत्ते, कपड़े, खाने पीने का अशिया, वो सब हम देते हैं। इस तरह करके तकरीबन 25-30 बच्चियों की हम हर साल शादियां कर देते हैं। जो हमारे पास आता है, कोई मुसाफिर गरीब आ गया, उसकी किसी बीमार की मदद में, वो जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा होता है छोटा मोटा, उसको हम इस तरीके से गरीबों पर खर्च कर देते हैं। अच्छा, किस तरह से पूरे देश में अलग अलग जो तंजीमें हैं वो क्या काम करती है ज़कात के पैसों का, क्या तंजीमें? बहुत सारी मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जिनका अपना अपना अलग एतबार से मकासद हैं। जमीयत है, उसका एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान भर में प्रोग्राम है, तालीमी इदारे चल रहे हैं, ITIs हैं और एजुकेशन के दूसरे सेंटर हैं। इसी तरह ज़कात फाउंडेशन है, उन्होंने ओखलाम हफ्ते का नाम से एक इदारा कायम कर रखा है जिसमें यतीम बच्चे रहते हैं और IAS IPS की कोचिंग का सिलसिला उनके ज़ेर साया बराबर रहता है। हर साल उनकी मेहनतों से बच्चे टॉप कर रहे हैं और IAS IPS आ रहे हैं। और भी जितने इदारे अपने अपने एतबार से कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मुल्की पैमाने पर न सही, कम से कम सूबाई पैमाने पर अगर ज़कात एक जगह इकट्ठी हो जाए तो उससे मुसलमानों के और दूसरे बिरादरान वतन के रास्तों के, कुओं के, फिर पानी की प्याऊओं के, दूसरे खैर के काम भी उस पैसे से किए जा सकते हैं। इस्लाम में माना गया है कि 2.5% ज़कात देकर मुसलमान अपने जान माल की हिफाजत कर सकते हैं। तो रमज़ान के इन दिनों में रोज़ा रखकर जहां रूहानियत का एहसास हो रहा है, वहीं ज़कात देकर भी लोग सवाब हासिल कर रहे हैं।